Apurva, you would like to share? Yes. So I was just saying that, especially while coming out of college and then starting, there were a lot of questions. And being in art of living, spiritual practices, everything, it's really tough to control your emotions. And I was like spending a lot of time in learning about emotional intelligence. That topic itself, I might have Googled many times, but now, especially when I saw this course from level 1 and level 2, it is outstanding. I mean, I don't think I need to repeat that, but it is really outstanding. The way emotions have been mapped, first of all, the simplicity of the course itself is so beautiful. And the way you've convened it, Bhaiya, it's everybody here is vouching for that, because we didn't feel rushed, and we didn't feel कि हमें जल्दी जल्दी करना है या फिर interaction नहीं हो रहा है. The portal, your forum itself, that itself is a very big strength, because we can discuss with all the folks. So I found after that, because I also was not very good handling emotions of others, I could do, but now it's much more easier, because we have gained a completely different outlook between level 1 and level 2. The major thing that I learned was, it is one thing to know what is a remedy and what is an emotion, but it is whole another thing to know why it is happening. And when you see a person behaving in a so to say different than your expectation, you can realize why it must be happening. And it is very easy to learn or maybe remember, for that matter, कि इस remedy से ये emotion क्यों connected है, इसका पेड़ ऐसा था, इसकी पत्ती ऐसी थी. So that helped a lot. And I think we all should, I mean, it should reach a lot of people, as many as possible, because it is really a stupendous gift by Dr. Batch. One other thing that I wanted to point out was that I have some friends, rather older friends. They are like aunties and uncles. So they actually said that, I mean, we have heard about it because they were outside India for a lot of time. So they said, there are books available. Why do you need to do a course? That was first thing before level 1. Then later on, it also came to my mind, okay, level 1 and be care, why to do level 2? But what I have gained, and I have shared it with them also, that it is one thing to read a book, and know the remedies, because they also know the remedies. But when I started talking to them the way you have explained it to us, they also accepted that yes, there's a huge difference, and they were practicing, not actively practicing, because they were not aware of this detail which we could learn in course. So I think going through this course itself opened all those ideas for me. And I could talk to them. Even today we were discussing that why shouldn't we give out like rescue remedy, for example, as a, like you said, right, giving out the exam remedy or something, because otherwise we would just publish it. So I told them the same thing, and then you kind of lose faith कि अरे ये work नहीं कर रहा है क्या. So all that system itself, that was beautifully taught in this course, and I think as many as possible people should experience this knowledge, because this is life changing. Superb. Well, as Dr. Anita just commented in the chat, our brightest student, most active and the brightest student, बहुत अच्छे से किया अपूर्वा, and I know that you will do it very nicely. कोई clients deal किया अभी? What was their experience when you spoke to them? Yeah, it was. I actually there were a very bigger like age-wise, they were a very wider range that I spoke with. Thankfully and coincidentally, I discussed with Nikunji also once. So right from my age and even my cousins who are like younger than me, to a person who is 64, 65. And the way they opened up, because the moment you touch the right chord, bhaiya, like during consultation, you were talking yesterday also, जैसे आपने वो थोड़ा सा उनको पूछा ना, and they feel that compassion, because we are not here to judge. Even we tell them also, this is an emotion, this is not you. So they kind of get comfortable. And even though the gentleman who I was talking about, he didn't opt for a remedy yet because he's in US, but he just immediately said, I need
me that well. So he just immediately said that I've never opened up, and I feel so relaxed that I think when I come, I will definitely take the remedy. But I'm feeling very relaxed. So for remedy itself, like batch remedy itself, I've tried it with my parents. My father is a stroke patient, and he was a very active man and a very innocent person. So I started giving him medicine 3 days back, and I asked him. The first thing that he said to me was, "कि हमें डर नहीं लग रहा है. I'm not fearful anymore." So I said, "Are you trying to boost my morale, or are you really saying that?" He said, "No, I'm not feeling fearful, and I'm feeling positive that this can improve." So that was a very big statement for me, because we've been trying to, you know, make him motivated or feel motivated for that. So it was a, I mean, for me, it was like very stupendous things. वेरी नाइस ना। और वैसे बेटी के हाथ से रेमेडी आ गई तो कुछ भी पानी भी मिल जाए तो वो भी मोटिवेट से नहीं करता है, बट इफ यू आर गिविंग बैचलर रेमेडी दैट इज इवन मच मोर सुपर। पूरा क्लैप फॉर हर। And thank you to the wonderful class. वो सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन भी रहा। अब मरीना जी, आप बात करना चाहोगे? जय गुरुदेव। लेवल दोनों लेवल करने के बाद I find myself in a place where I feel अगर ये मुझे बहुत पहले मिलता तो शायद मेरे रिश्तों में बहुत इतना बेकंट्रोल नहीं हुआ रहता शायद। I am so sorry. Every time I was understanding, but I did not have the way how to make them understand. And I hope now I am able to, without judgment and unconditional love had already taken place by Gurudev's grace, but judgments used to come at the onset of any event, which was not in my control. But I'm saying that after level 2, the deeper understanding of emotions, I'm able to feel कि perhaps this is why it is happening. And relating to the karmic, as Gurudev says, but it is really tough. Tomorrow and day after it's holiday for me, so I just want to make the remedies and start taking for myself first, so that I don't lose. It is so important because I am very deep in my sadhana, in my seva, as a teacher, as a everything. There is no dearth of commitment. Still, I feel. I don't know whether I feel, because when you larger divine, that is what is also being told in batch therapy. I also feel one important thing, that it is as a soul's evolution. For that you have to go through this. But the beauty of this batch level second 2 is that there is a hope that without getting hurt, this step can be arrived at with joy. Hiding our emotions and being protected and able to extend the same help
with the same love, but not getting jolted from within. Because I feel as sadhaks, when we are jolted, it disturbs more, though we are not aware of it. But I have seen this happening. That stability in myself to bless, to heal, to bring the positivity, that positive thing inside me should never get disturbed. Now I'm realizing what Gurudev means by saying a spirit, as sadhaks, our responsibility has become much more. And I had tried so much, but it was not happening. I have many patients actually to be consulted with. Tomorrow I have fixed up one very important patient with along with Nikunji. I thought I will go for it, and others I have all fixed up. And from tomorrow, I Gurudev's blessings and your all the precious and blessings. I wish to take up the healing and consultation. Very nice, Marina. मेरा नाम नीता चोपड़ा है और मैंने लेवल 1 बैच फ्लावर रेमेडी और लेवल 2 दोनों किया। करने से पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला करने के लिए और फिर मैंने दोनों का इकट्ठा ही कॉम्बो पैक ले लिया। और पहले दिन तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे लगा कि पता नहीं क्या है, लेकिन सेकंड डे से मेरे अंदर अपने आप इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ एंड आई रियली ब्लेस माई सेल्फ कि आई वेंट फॉर इट। नाउ आई से दैट, क्योंकि लेवल 1 में हमने सीखा, it was an amazing knowledge and I was really, it was very amazing। मतलब मुझे हैरानी हो रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि फ्लावर्स का इमोशंस के साथ में। और लेकिन जब लेवल 2 में आए तो it was just superb, it was just superb। लेवल 1 में तो हमने सीखा जैसे सुपरफिशियल सीखा कि हाँ ये नाम होते हैं, ये रेमेडीज होती हैं, ये उनकी वर्च्यूज होती हैं और ये दिया जा सकता है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो थोड़ा सा हमने उसको सुपरफिशियल गए। लेकिन जब हम लेवल 2 में गए और एक एक प्लांट का स्ट्रक्चर, उसकी डेप्थ देखी और उसका कोरिलेशन जब हमने स्टडी किया और जब ये देखा कि डिजीजेस सारे इमोशंस के साथ में है, दिस नॉलेज इटसेल्फ, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है पूरा 20 दिन 21 दिन कोर्स करने के बाद में रोज और उसके साथ में अभी भी मुझे लगता है कि क्या मैंने कर लिया। Really, it's really amazing। I have started taking the remedy on myself और मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने परसों से लेना शुरू किया है, अभी मेरा कंप्लीट 3 days नहीं हुआ, 2.5 दिन ही हुआ है। और मेरा जो एक्सपीरियंस आज तो मुझे इतना फील नहीं हुआ, लेकिन कल तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इमोशनल लेवल पर तो उतना ज्यादा मुझे नहीं फील हो रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर कहीं तो जाके इस कोर्स ने मेरे चेतना पे भी प्रभाव डाला है। कहीं तो मतलब बहुत ही इट्स रियली अमेजिंग, अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स जो इट रियली नीड्स टू बी डन बाय एवरीबॉडी और सब लोग को करना चाहिए। वो जैसे हम लोग बोलते हैं ना सुदर्शन क्रिया के लिए कि रसगुल्ला सफेद होता है, गोल होता है, जूसी होता है, मीठा होता है, खाओगे तो पता लगेगा क्या है, अदरवाइज तो डिस्क्रिप्शन ही है, उसको इमेजिन करते रहो। बस वही चीज है कि इसको करने के बाद में जो आप जब करते हो और इसको रियली में अगर आप अपने पूरे मन से करते हो, और दिग्विजय भैया तो बहुत अच्छे से समझाते हैं एंड ही हैज सो मच ऑफ पेशेंस विद ऑल हिज स्टूडेंट्स, और हम बीच बीच में भी बोलते हैं भैया ये बता दो ये बता दो, तो ही हैज पेशेंस फॉर ऑल दैट एंड ही क्लियर्स अप आवर डाउट्स एंड ही इज सो मच कमिटेड कि हमको रेमेडीज में भी हेल्प करते हैं। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, 1-to-1 जर्नी, इन अ ग्रुप जर्नी, और इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, not only on your as a subject, I would say, not only as a theoretical part, but it's got a wonderful approach to quality of living, I would say, and that is what is actually required. Whatever we do, how much of quality of living we can increase for ourselves and for the people, others whom we are interacting. So this is a beautiful journey, a beautiful way of interacting with others, helping others,
जिसको हम बोलते हैं सेवा करना, तो ये रेमेडी देना भी इतना सुंदर सेवा का पथ है कि हम किसी को बीमारी से मुक्त करा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या सेवा हो सकती है। क्योंकि वही एक सबसे बड़ा हिंड्रेंस आता है स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर भी, आपके डेली लिविंग पर भी, हर चीज पे। अगर हम कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छा नहीं है तो कोई भी वेल्थ अच्छा नहीं लगता है। और नीता जी क्या तो जब लगता है हेल्थ कि अच्छा हो लेवल गया 2 तो के वेल्थ बाद सब अच्छा हो एकदम गया। ये जो नॉलेज है बैचलर का इसमें एस्टेब्लिश हो गया, ऐसा लग रहा है आपको? बहुत क्लैरिटी आ गई कंपेयर टू लेवल 1? नहीं, बहुत क्लैरिटी आई है, क्योंकि लेकिन उसमें अभी अपना सेल्फ स्टडी का जरूरत है। सिर्फ हम ये बोल देंगे हमने क्लास अटेंड कर लिया, मास्टर्स हो गए, अब इसमें उतना नहीं। इसमें हमको जितना अपना सेल्फ स्टडी डालेंगे, इसमें हमें पढ़ाई करने का जरूरत है। और दूसरों को देंगे हमने अभी तब डेप्थ में समझा है। बिल्कुल, हाँ, डेप्थ में समझा है, और समझने के बाद हम जितना इसको प्रैक्टिकली इसको हम अप्लाई करेंगे, उतना हम गेन करेंगे, उतना ही ज्यादा इसमें ग्रो करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस करके और वो लॉफ्ट के ऊपर नोट्स रख दिया, उससे काम नहीं चलेगा। वी हैव टू बी इन टच विद इट। करते रहो करते रहो, तो जितना करते रहेंगे तो उतना ही हमारा हाथ साफ होता रहेगा और उतनी नॉलेज हमारी। इट्स अ ग्रुप स्टडी आल्सो, करेक्ट। इंडिविजुअल एज ये वेल। जरूर करना आप सब लोग जो मिलके ना एवरीडे मिलना और ये सब कांटेक्ट में रह के केसेस डिस्कस करना। और मे बी इसीलिए जो लास्ट लेवल 2 के भी लोग थे उन्होंने ग्रुप में सजेस्ट किया था कि लेवल 3 इंट्रोड्यूस करो, ताकि हैंड होल्डिंग से वो 50 केसेस आप हमारे साथ करो, है ना। तो इसलिए फिर लेवल 3 भी हमने इंट्रोड्यूस किया है। बट अदर देन दैट आप भी ग्रुप में एक दूसरे को हेल्प करके जरूर इसमें अच्छे से करना। And थैंक my यू। special thanks to Digvijay Bhaiya, to you, for motivating me to join this course, because I was very perturbed. I was really reluctant to join it, क्योंकि इतना सारे कोर्सेज करते हैं, टाइम नहीं मिलता है उनको आगे बढ़ाने को, पढ़ने को। तो क्या एक और ऐड कर लो, उसके भी नोट्स बना के रख लो और बस पढ़ा रहेगा तो बट क्या आपने देखा फायदा ये है। बाकी सारे कोर्सेज में जिस तरह से आप लोगों को डील करोगे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया होगा आफ्टर दिस कोर्स, डोंट यू थिंक? यस यस, डेफिनेटली। यस, तो अच्छा है और करना चाहिए। एंड आई एम प्रमोटिंग दिस कोर्स टू एवरीबॉडी। मतलब जो मुझे मिलता है मैं बोलती हूँ कि करो। लेवल 1 अच्छा, इतना सारा फीस है, इतना नहीं, तो चलो लेवल 1 तो करो। कि लेवल 1 भी करोगे तो अपने आप जब इंटरेस्ट ग्रो करेगा तो मे बी दे विल वांट टू डू लेवल 2 आल्सो। पर लेवल 1 में तो आओ, इतना तो करो। चलो कॉम्बो पैक मत लो। पर अभी मैंने 3-4 लोगों को तो कर दिया है। पेनी इज ज्वाइनिंग नेक्स्ट टाइम, शी इज ऑलरेडी पेड द फीस। और 3-4 लोग अभी, विकास आ रहे हैं, रश्मि मिश्रा आ रही है, अभी और भी हैं तो जो कि पाइपलाइन में बोल रही हूँ। तो बिकॉज आई एम कन्विंस्ड, आई एम हैप्पी विद डूइंग दिस कोर्स, सो आई वांट अदर्स to do it as well. And this, you know, joy is in sharing. वो वाला जो है अपना नीता जी बहुत अच्छे से किया उन्होंने। आपके ग्रुप के साथ जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, इंश्योर करना कि वो सब आप कर रहे हो। Has Shweta joined or not yet? Okay, I have to leave. मैंने इसलिए आपको कट किया क्योंकि 8 बज चुके हैं, पीटीसी में लेट नहीं होना। I have to leave. I have to join other session now. Yes. And I will need recordings from you, and I'll be in touch with you whenever. Sure. Okay, thank you so much. We are all blessed, है ना? Very nice. हाँ, श्वेता आ गई क्या डॉक्टर अनीता? हाँ, श्वेता है तो दिख तो ये है, she's here. हाँ। इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों हो रहा है इस टाइम। आपके पीछे से लाइट आ रहा है, बैच फ्लोर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट लग रहा है। येलो लाइट आ रहा है पीछे से। वाईफाई से चल रहा है मेरा। चलो ठीक है श्वेता जी। सो पहले तो स्माइल कर दो जी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इंटरनेट ठीक नहीं है। अब बताओ जी कैसा लगा लेवल 1, लेवल 2 कैसा लगा कंपेयर टू लेवल 1? एंड आपने जिस को ट्रीट किया उनका क्या अनुभव रहा, घर में या बाहर लोगों में ट्रीट किया उनका क्या अनुभव रहा? लेवल 1 कोर्स जब मैंने किया मुझे काफी अच्छा लगा। सच बताऊं कि आई हैव फॉलन इन लव विद दिस कोर्स and really I have never learned anything else better than this before. और क्योंकि ये एक तो इतनी सुंदर, मतलब मुझे लगता है ये इतना सुंदर अद्भुत कोर्स है जो हर किसी को एक बार तो सीखना ही चाहिए। आप उसको अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशनल करो या ना करो, बट इस नॉलेज को मुझे लगता है हर एक बंदे तक पहुंचना चाहिए, हर किसी को सीखना चाहिए। जब लेवल 1 मैंने किया, मुझे क्लाइंट्स को हैंडल करने में थोड़ा सा
कॉन्फिडेंस कम था, मुझे लग रहा था कि मेरी नॉलेज जो है वो अधूरी है। पर इवन मैंने कुछ क्लाइंट्स को 1-2 लोगों से बात करने की कोशिश की तो मुझे ही लगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से इवन उन्होंने भी कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो देन फिर मैंने आगे किसी को कॉल नहीं किया। लेकिन जब लेवल 2 करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ हम फिजिकल सिम्टम से भी हम लोग कैसे लोगों का एनालिसिस कर सकते हैं, हेल्थ एनालिसिस, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया लोगों से बात करने में, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने में। और उसके बाद जब मैंने बात करी ना लोगों से, सच में मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला और हर बंदे का पॉजिटिव रिस्पांस था। वो अलग बात थी कि कुछ लोग उस टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं चाहते थे क्योंकि उनको कोई अर्जेंसी नहीं लग रही थी उस टाइम ट्रीटमेंट लेने की, लेकिन बाकी जिन लोगों को भी लग रहा था कुछ स्ट्रेस है या कुछ भी हेल्थ इशू है, तो उन लोगों ने मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए बोला और अकॉर्डिंगली मैंने अपॉइंटमेंट उनसे बुक किया। और अभी मैंने 2-3 लोगों से बाद में फॉलोअप भी किया है जिन लोगों ने 1 हफ्ते से ज़्यादा रेमेडी ले ली, तो वो लोग भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आई थिंक तीनों को अभी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उससे। ऑल आर फीलिंग गुड अबाउट इट। वेरी नाइस। और आपके लड़के का भी कुछ फीडबैक है ना? हाँ, और सबसे पहले मैं अपना भी बताऊंगी कि मैंने दिग्विजय भैया से ही पहली कंसल्टेंसी ली और मेरे को भी काफ़ी सारे हेल्थ में इशू थे, जैसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नेजल पॉलिप्स और हैंड्स में स्ट्रेंथनिंग की प्रॉब्लम। लेकिन मेरे को 2 दिन तो जब मैंने रेमेडी ली तब कुछ डिस्कम्फर्ट हुआ, जैसे मेरे को नाक में कुछ लगा, कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है। अब मुझे लगा कि पता नहीं कुछ फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद ही ना सारी चीज सेटल होने लगी और काफी अच्छा रिजल्ट आने लगा। मतलब बिना किसी मतलब इतना नेचुरल तरीके से इतना अच्छा रिजल्ट आना, तो वो क्या अपने चेंज हुआ? अच्छा रिजल्ट मतलब क्या क्या चेंज हुआ है? अच्छा, मतलब जैसे मेरे को नींद भी आने लगी, कंटिन्यूअसली नींद आई है। उसके अलावा मतलब मैं देख रही हूँ मेरे को पहले हैंड्स में स्ट्रेंथनिंग की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई। मुझे नेजल पॉलिप्स की वजह से ना हर 2-3 दिन बाद स्टीम लेनी पड़ती थी। सब कुछ लगता था कि लाइक इंडाइजेशन हो जाता था, जैसे नेजल ब्लॉकेज होता था, तो लगता था सब कुछ प्यूक आउट कर दूं। लेकिन अभी मैंने तब से ये रेमेडी ले रही हूँ, आई थिंक मेरे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। और वरना ये मेरी 7-8 साल पुरानी प्रॉब्लम हो गई, 12 साल बल्कि कह सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ी थी शुरू में, बट 7-8 साल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं होम्योपैथिक भी मैं कंटिन्यूसली ले रही थी, बट वही था, इतना ज़्यादा फास्ट किसी ने भी मेरे को रिजल्ट नहीं दिया जितना इस रेमेडी ने दिया। तो मतलब मुझे तो मतलब इससे ज़्यादा सुंदर कुछ लग ही नहीं रहा अभी। वेरी नाइस। और फिर घर में फैमिली मेंबर्स का क्या फीडबैक है? हाँ, मेरे बेटे को भी मैंने दी, उसको भी 2 दिन बाद ही रिजल्ट मिला इसका। अच्छा, उसको लगा कि उसका मन शांत हो गया, कॉन्सेंट्रेट वो अच्छा कर पा रहा है अब, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा 2 दिन बाद ही। और मेरी मम्मी का थोड़ा हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है, तो उनका दर्द वगैरह मतलब एसिडिटी में उनको भी फायदा लगा। तो उनका क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म कंडीशनिंग है और आई थिंक शी नीड्स टू टेक इट फॉर लॉन्गर टाइम, तो उनको भी मतलब रिजल्ट तो मिला ही है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों में ज्यादा टाइम लगे। How many consultations, paid consultations you did during your level 2? अभी मैंने 5 लोगों को 4 लोगों के पास रेमेडी जा चुकी है, 1-2 लोग होल्ड पर है अभी मैंने। सुपर, क्लैप फॉर श्वेता, बहुत अच्छे से किया उसने ना, खुद का भी कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, या वेरी नाइस। And I'm sure Shweta you will reach out to more people and you will give this therapy to as many people as you can. Many people need it. Yeah, super. All the best. Thank you, Mayor Digvijay Bhaiya, for giving us such a wonderful knowledge. And happy birthday to Shweta from all of us. क्या सुपर है, लास्ट डे पूरा बैचलर थेरेपिस्ट बन के निकले हो, नया बर्थडे, नया साल, नया एम, नया ज्ञान लेके आगे बढ़ते हो। वेरी नाइस। Thank you. Jai Gurudev. All the Jai best. Gurudev. Blessings from all of us. Okay. Who would like to go next? अभी तो पूरा मैदान अपना है। Dr. Anita. There are patients. Some of our patients are actually waiting. Yeah. Introduce yourself and then you can. Namaste. I'm Dr. Anita Chaudhary. I'm a gynecologist by profession, and I also take Garbh Sanskar classes. When I did the Bach Flower level 1, I knew emotions से कैसे connected हैं diseases.
but then I didn't have enough confidence to actually go forward and treat patients. And me being a specialist, like I really like to go in depth. कोई भी चीज है तो उसकी गहराई तक जब तक हम नहीं जानेंगे, I cannot do superficial treatment. मेरे को लगता है वो क्वैटगिरी हो जाएगा. So that is why मैंने level 2 का शुरू में ही कर लिया था sign up. I had no doubts about Bash Flower. ऐसे जब करना है तो पूरी तह तक जाने, किसी भी चीज को अच्छा बोलना या बुरा बोलने के लिए तो कोर्स तो पूरा करना ही होगा ना. तो level 1 was a trailer and level 2 was the complete movie. And it was an amazing movie. जो बीच में interval time था basically वो हमारा level 1 और level 2 के बीच में. So I did a lot of self study कि कैसे emotions, कैसे plants से connected हैं. And then I would even look at the plants around me and वो feeling the plants are talking. वो मेरे को thought पहले से भी होता था कि plants do have emotions. But then I didn't have knowledge, I didn't think on those lines. And me being an allopath तो हमको तो हर आदमी में बीमारी ही दिखती थी. लेकिन after doing my level 2, I can see more stress and more emotions in the same patients. Like I feel my approach towards them has become more humane because I can probably give them more time. नहीं तो पहले अच्छा क्या problem है, दवाई लिख के भेज दिया. So I feel a complete holistic treatment is so important. Allopathy भी जरूरी है, Bash Flower भी जरूरी है, meditation तो बहुत जरूरी है ही है. So it's a complete, and Bash Flower भी meditation बोलता ही है, affirmations हमारे होते ही हैं. So it is working at all the levels. So spiritually, physically, emotionally, ये complete package है. And ये यदि हमारे को पहले से मालूम हो, maybe at the school level or when we are younger, so we'll know how to handle our emotions. Our relationships could be much better if we know something about ourselves, if we know about our personality. Now, I'm 54 years young, and I didn't know what my personality was. According to Ayurveda, Vat, Pitta, Kapha, that I had a vague idea. But then knowing myself in depth through Bash Flower was such an eye-opener. So now I know ऐसा चीज है तो मैं ऐसा react करने वाली हूँ. The predictability test, even I know for myself. So, and I have been actually looking on people's emotions and seeing how my relationship with them was and how it is. And in the last few days, ever since I did my level 1, I can see a lot of change in my attitude, in my own patterns. So that was remarkable. So I would advise everybody to do this to improve their emotions and in turn improve their disease. And I will tell everybody, you can come to me in whatever form. बीमार होके आओगे तो हम इलाज करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अपने आप को समझने के लिए आओगे तो वो बीमारी के स्टेज तक पहुंचने ही नहीं देंगे. And the way the whole program is planned, level 1, level 2 is amazing. Very sorted, very simple. Yeah, level 2 में बहुत पढ़ने की आवश्यकता है and it will be an ongoing process. The course is finishing today. पर अभी आगे हमारे को practice करके I need to reach out to more people. I will not call them patients. Not everybody is a patient according to me. So the normal population, हम उन तक पहुंचेंगे तो वो patient बन के आएंगे ही नहीं. Very nice. So thank you so much, Digvijay ji. And I would advocate it to everybody. Today I started with 3 patients and I've called them tomorrow. उनको remedy बना के मैं कल दूंगी because I wanted to study everything, sit down, do my homework, refer my notes, and then subscribe. Very nice. Prescribe. और शुरुआत में maybe you can also do the consultation on phone so that you can keep your notes in front of you. Yes, yes, तो भी yeah. और बहुत अच्छा, we are so happy. I'm so happy. एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीजन गायनेक हमारे फोरम का पार्ट बनी है, तो हर चीज में हम आपका गाइडेंस ले सकते हैं कि नहीं. कल भी किसी कहा कि और जस्ट टॉक टू डॉक्टर अनीता. तो ऐसे कोई भी क्लाइंट्स है जो भी जहाँ पे गायनेकोलॉजिकल एडवाइस की आवश्यकता है, वी ऑल शुड रेफर देम टू यू एंड आई एम श्योर दैट दे विल गेट कंप्लीट सॉल्यूशन with Bash Flower angle also and otherwise also from your side. Clap for Dr. Anita. We're so fortunate to have her in the force. Thank you. It's your energy which kept us together. Gurudev. Jai Gurudev. Thank you. Jai Gurudev. Arun is joining from Australia. So let's see. Arun, hi. What time is it there?
Hello, Jai Gurudev. It's 10:42 here. Okay. So it's quite late, but yeah, I'm used to it, sort of. Now in 15 days, Well, you'll get used to it. Yes, definitely. Till 12 o'clock. Staying up late, it was really stimulating, and learning about best flower remedies it's a beautiful journey. क्या रहा It's लेवल 1 really, लेवल 2 में डिफरेंस क्या रहा, क्या क्या किया लोगों को दिया, उनका it's क्या अनुभव रहा? level 2, we went into much detail, much depth with regards to emotional aspect. And of course, you are an amazing instructor. You shared many case studies. We discussed in much detail about plant, how remedies are formed. And I really never thought about emotions, understood about it so clearly before. It really opened a new dimension to me. And I would like to discover more and experience more in this ongoing journey with my fellow level 2 buddies. And thank you for giving this opportunity to part of this forum and this continued discussion ongoing basis. This really helps. And knowledge shared in level 2, it really boosts your confidence while dealing with others and eventually help yourself and so that you can give appropriate remedies to others. So really, thank you so much. Super, Varun. And I'm so glad that we have somebody in Australia, in that continent also, you know. We want everybody in all the continents, so that we want to send some remedies somewhere, we can just tell you to courier, yeah? Yeah, definitely. I'm just waiting for my Your own remedy. remedy. Okay. Hopefully it will come soon. And then, Yeah. yes, we are good to go. Anybody, you know, Anita ji has, she has her sister here. Maybe I can send her from here. And definitely. Very nice, Arun. I'm so glad that you are part of this. And as you rightly said, not only the case studies we discussed in the class, but also the forum on the WhatsApp group. So many people keep on sharing so many groups this case studies, no? And you need to make it a point, all of you, that you reply with your views. Even if somebody has already replied, which is correct, you must reply to that. Yeah? Because every new case you handle and you see other people's opinion, it's a growth for you. Yeah, so that you will be able to more clearly understand 12-7-90, and more when you can relate. Oh, if this is given, then all three are taken care by, you know, they get resolved by themselves. So keep practicing. That's the key. Yeah? And probably that's why there is level 3 now. Okay, Arun, thank you. Definitely looking forward to it. Who would like to go next? Vivek from US. वे सारे जो, yes, Vivek. नहीं, फिनिश कर लो, क्या बोलने वाले थे? नहीं, कोई बात नहीं। तो सारे जो विदेशी लोग हैं उनको हम पहले कर लेते हैं, उनका टाइम थोड़ा अलग है यहाँ से बोलना वाला था, but I thought you are as much as desi as I am, so I said yes. ठीक है, तो मेरा नाम विवेक है, विवेक गुलाटी। मैं यूएस में रहता हूँ। प्रोफेशन मेरा इंजीनियरिंग है, लेकिन मैंने बैच फ्लावर के बारे में ऐसा पहले तो कुछ नहीं जानता था, तो फिर लेकिन क्यूरियोसिटी थी, कहीं से तो शुरू हुई क्यूरियोसिटी। तो फिर मैंने लेवल 1 और 2 एक साथ साइन अप किया था। लेवल 1 जब किया तो फिर उसमें पता लगा कि अच्छा, ये फ्लावर्स हैं, इनके ये इमोशंस हैं, ये रेमेडीज हैं, ऐसा करके। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ एक सर्वे सा मिल गया था कि हाँ ये सब है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ये था कि अच्छा, अगर किसी को हेल्प करना है तो कैसे करना है, वो पार्ट मिसिंग था। तो वो लेवल 2 में जाके हमने सीखा। लेवल 2 में इन डेप्थ स्टडी किया हर प्लांट्स का, उनको कैसे रिलेट करना है विद अ पर्सन, और पर्सन से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे उनको, जैसे आपने एग्जांपल दिया था ना, कैसे अनियन के लेयर्स की तरह, ठीक है, उसको कैसे लेयर्स को पील अवे करके जो कोर इशू है उस तक कैसे पहुंचना है, वो सीखने को मिला। वो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। मैंने 3 कंसल्टेशंस आपके साथ की थी, एक मैंने खुद से भी की, और जब मैंने खुद से की तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक्चुअली जो मैंने परत खोलनी शुरू की है उसमें और ज्यादा डेप्थ में जा सकते हैं ऐसे करके। तो मैं आगे और इस वीकेंड और 3-4 लोगों को देखने वाला हूँ, तो उसमें वो बहुत हेल्पफुल होगा।
मेन चीज मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी बैच फ्लावर की वो ये है कि जो इमोशंस हैं जो हम नॉर्मली इतना समझते नहीं है, ज्यादा बात नहीं करते, उसके बारे में एक फ्रेमवर्क और एक लैंग्वेज मिली उसको डिस्क्राइब करने की, और फिर उनको हैंडल कैसे करना है। क्योंकि ऐसा है कि देखो, जब हम छोटे थे तो हमें ये कहा जाता था कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो या ये मत करो ऐसा, पर उसको ये समझना कि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वो इमोशंस के बिना जीवन नहीं है। तो लेकिन इमोशंस में फंसना भी नहीं है। तो कैसे वो जो मिडिल पाथ है वो बैच फ्लावर्स ने बहुत क्लियर किया मेरे लिए, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आपका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरैक्टिव है, सबको साथ लेके चलते हैं। तो एज अ टीचर आई एम रियली लाइक वेरी थैंकफुल कि आपने ये सिखाया। थैंक यू। आप म्यूट पर हैं तो आप। थैंक यू विवेक जी। और जिस तरह से विवेक जी के साथ मैंने को कंसल्टेशन किया, ही सो गुड, you know, in fact he brought one of his friend also from California, in some international, क्या नाम था उनका? Sharon also, and they both did the course together on weekends, and he immediately joined level 2, and the way he has attended with so much of detail, with a lot of attention, he attended the program, and the way also he interacts to people, you know, I have seen the way he interacts to people, the way he's connected to people. It is so nice, very calm, composed, private guy, water violet guy. But when he opens up with his joy, with his smile, with his genuine care and concern about people, and with his in-depth understanding, patience to listen to people, understand the case, he has, I think that he is already a wonderful practitioner, bachelor practitioner. Let's clap for Vivek. Vivek, you keep visiting India also, ashram also? अभी तो एक कोविड के से नहीं हुआ है, बट हाँ मेरा उम्मीद तो रहती है कि आते रहूं। Hope to see you soon. Yes, definitely. Okay. Very nice. Sangamitra, the animal expert. Now anybody who is coming to me for dogs, I am sending them to Sangamitra. Yes, Sangamitra. I am Dr. Sangamitra. I'm a general practitioner. I'm an allopathic doctor. I have registered together batch level 1 and 2 together, because anything I want to learn, I want to take a deeper knowledge. Yes, definitely. If you want to be a good practitioner, gain confidence, doing level 2 is much better. It gives a very deeper knowledge. Level 1 is just introduction about the flowers, and level 2 it gives much deeper knowledge about the plant structure, everything. It gives you confidence also for practicing. That's what I feel. What's your experience with your dog? Would you like to share that? Today's day 8, no? Very good experience with my dog. Yeah, he had some skin issues which got cured within a week. Can you elaborate the issue and how you did it? I gave him remedies. Should I tell what I gave? No, that's okay. What you gave is data, but what was the issue and how the remedies helped? He developed some blackish thing. It is like a fungal infection due to maybe the weather condition. He usually gets a recurrent thing. So I thought one day it was lying with me. The kit was like, when I was doing level 1 only, I have noted my dog's name against that remedy. So I'll give him. But the kit was lying with me, stock kit was lying with me for 15-20 days. I didn't feel like giving him. So we were trying on ourselves only. So all of a sudden I saw it was becoming very worse, and he started scratching, licking that area. So why not I try this? I immediately put it and started giving him without not much of expectation. So to my surprise, he developed, improved so much. So I'm really impressed with that. I didn't think that
he'll be improving so much. And then I have started with the external application that gave even much better results. Yeah, now he's totally almost 80%. That day you were asking how many percentage? 80% now, I would say. So with few more days, a week time, I think he will be recovered fully. Then I'll share you the pics. Very Yeah, nice. and that remedy works on us also. It works wonder with dandruff. Oh, Only that dose. Only once. That dose means only once I used it, and it's wonders. Did wonder. so you put it in your shampoo, is it? Yes. Very Only. nice. And your dog came asking for the remedy, no? Would you like to share that? Yeah. One day I forgot to give him. So he came and he came near me, and he kept on sniffing both my hands. This hand, so chale jao. Then again this hand, this hand, this hand. Then he came behind and behind. Then I thought, what is it? What do you want? Generally, he never comes to me at that time. You know, he goes to sleep. Then I suddenly remembered I forgot to give the remedy. Then I said, come. Then he came to the fridge. I opened the fridge always. Then उधर से ही उसका वो remedy भी उधर ही रखती हूँ. I just take the piece of bread and put it on that, and he always just came back to me. Back to me. Then he just I gave him just a small piece of bread. It is not for bread. Bread तो उसको पेट तो भरा हुआ था. He just had it and went to sleep immediately. He just asked for it. So I felt this thing in me also. When I took one remedy for something, so I didn't feel like taking it. That remedy, I keep trying all remedies. Around 10 remedies I tried on myself with 10 ml treatment water. 2 remedies I didn't feel like trying it. After 2 days, I didn't feel like having it. Go for the next remedy. So I'm experimenting on myself also with one remedy. But with family members, I have mixed 2-3 remedies and giving them. There's houses filled with lot of positive energy as of now. And still, children say me, don't ask about your dawai ke bare mein mat pucho. Because I'm an allopathy doctor, I used to treat them always. I give them tablets, syrup, everything. Now I give them some drops, and how do you feel? They don't appreciate that. But I feel a lot of positive vibe as of now. So I think it will take some more time. If there's something, then I'll definitely share. Superb. Clap for Sangamitra. We are happy to have one more general practitioner, allopathic doctor in our batch forum, so that we can always keep asking our questions to them and keep sending some clients who need allopathy assistance along with the batch flower remedies. Who would like to go next? Pankaj ji hai? कहाँ गए पंकज जी? हाँ, अमिता जी आप बात कर लीजिए. पंकज जी कहाँ है? हाँ, है तो सही. पंकज जी और अमिता जी साथ में ही कर लेते हैं, या हाँ, पहले पंकज जी आप बात कर लीजिए, फिर अमिता जी कर. बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लो ना कैमरा को. जैसे बैच 1 का मतलब ये हुआ कि हमने ग्रेजुएशन किया, और लेवल 2 का मतलब हो गया कि अब मास्टर्स हो गया. लेकिन अभी पीएचडी होना शेष है, और मुझे लगता है कि जब वो 50 केस हो जाएंगे तो पीएचडी की शुरुआत होगी. लेकिन उसको भी अभी थोड़ा सा और भी जाने के लिए थोड़ा 1-1.5 साल का और भी अच्छा सा होगा. तब कहीं जो जा करके जो एडवर्ग ने खोजा है वो हम लोग उसको कुछ समझ पाएंगे. पिछले 10-15 सालों से हर गुरु पूर्णिमा पे पेड़ लगाता हूँ, और अभी करीब लगभग 40-50 ऐसे पेड़ होंगे कि एकदम अपने पूरी तरीके से एकदम चरम पे आ चुके हैं. तो अभी एक मैंने उसका लक्ष्मी तरु का भी पेड़ लगाया, तो उसमें भी क्या कि एंटी कैंसर और ये सारा बूस्टर वगैरह सारा, तो वो, और एक अमलतास, उसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है. तो पेड़ तो इतने लगे हुए हैं. घर में अमिता ने भी कम से कम 100-150 उतने पूरे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं. लेकिन वो पेड़ों के प्रति इतना बारीकी से जो एक अवेयरनेस आई, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम. फिर दूसरा जो इमोशंस थे, अब हम लोग प्रोग्राम वगैरह में, कोर्सेज वगैरह में इतना सारा सब गुरुदेव की ही वजह से हम लोग इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर पाए. और हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन एडवांस कोर्स में जब भी कराया जाता रहा है, तो उससे इतनी ज़बरदस्त फीलिंग और वो सब कुछ हुआ. तो अब एक और नया एक
टूल मिला। फ्लावर्स के माध्यम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूँ कि इसमें प्योरिटी और मेडिटेशन और जो अफर्मेशन है, इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर एज आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के रूप में भी है और उसके रूप में भी, तो थोड़ा सा एक बैलेंस सेवा और पैसा दोनों के बीच में रहेगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। भैया बहुत अच्छा रहा, और दूसरा आपका भी जो कॉम्पैशन, आपका भी वो, स्पेशली दिग्विजय भैया की एक वो बात कि जब वो ड्राइंग में ना वो रूट्स के लेवल पे जाते थे तो वो सच में भीतर जाता था, और उसकी कमेंट्री भी बहुत शानदार रही। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। थैंक यू पंकज जी, और मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप और अमिता जी मिलके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप थेरेपी दे, और जितना हो सकता है क्लैप आपके लिए अमिता जी का शेयर होने के बाद हो जाए। हाँ अमिता जी बताइए। मुझे तो शायद मैं अमिता मिश्रा, अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मैंने आपसे एक बार और पहले बात की थी, काफी पहले। शारदा जी ने मुझे पहले ही बताया था कि ऐसा है कोर्स कर लो, बट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत इसकी जो फी थी बहुत हाई थी, तो वो अपने से डिसीजन लेके करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो शायद वो पहला दूसरा जो भी कोर्स रहा होगा, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद वही लगा रहा, शायद 6 से 7 महीने पहले की बात होगी। फिर उसके बाद अभी आए फर्स्ट फेज तो करना नहीं था, लेकिन वो हमने किया क्या, अननोइंगली कर लिया दूसरे मोबाइल से। तो वो तो चलता रहा, लेकिन फिर आपने भी समझ ही लिया कि हाँ कोई है वहां पे। तो मेरे लिए बहुत जरूरत थी उसकी कोर्स की, क्योंकि शारदा भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मेरा पहले भी ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका है, 2 बार हुआ है। फिर यही कीमो वोमो ले रहे थे, प्लेटलेट्स वगैरह बहुत कम हो रही थी मेरी, बहुत ज्यादा कम हो रही थी, तो वीकनेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। फिर मैंने कोर्स किया, तो जैसे फ्लावर्स के बारे में बताया आपने ना कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं, पर मुझे बिलीव नहीं हुआ कि चलो फर्स्ट कर लेते हैं, सेकंड तो नहीं करेंगे। लेकिन जब फर्स्ट किया और जब आपने मुझे रेमेडी दी, तो पहले तो सब बहुत सही लग रहा था कि बहुत अच्छा है मेरे लिए, ये बहुत सूट कर रहा है मुझको। लेकिन जैसे मेरा ब्रेक हुआ ना, मैंने आपको मैसेज करा था कि मेरी मेडिसिन खत्म हो रही, रेमेडी खत्म हो रही है, तो आपने कहा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन आप शायद बिजी थे, बहुत नहीं कर पाए। लेकिन जब से दवा मेरी खत्म हुई है, उसके बाद से कुछ लैक कर रहा है मेरी लाइफ, मतलब मुझे लग रहा है कुछ लैक है, कुछ लैकिंग है मेरी। फिर जब लेवल 2 किया, तो लेवल 2 में आपने हमको कहा कि हाँ हम बैठे, तो बैठे। पर ये लग रहा था कि कैसे, जब सेकेंड लेवल में जब हमने करना शुरू किया, तो ये लगा कि क्या सच में ऐसा होता है कि फ्लावर्स के जैसी इमोशन है, वैसे क्या सच में हम लोगों में भी ऐसा ही होता है क्या? मुझे लगा कि जो भी जैसे भी फ्लावर्स हैं, चाहे उसके पेटल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, रूट्स वगैरह बहुत हार्ड होती है, स्टेम थोड़ी उससे कम हार्ड होती है। तो मुझे लगा कि सच में ये एक तो सच में बहुत अच्छा है ये कोर्स। और मुझे तो अभी बहुत सारे, मेरे पास तो ट्रीटमेंट किट ही नहीं है, तो अभी मुझे लग रहा है, लेकिन बहुत सारे, कम से कम 6-7 ऐसे पेशेंट मेरे चारों तरफ हैं जिनको मैं ट्रीट करना चाहती हूँ। तो ये कोर्स बहुत अच्छा था, और मुझे वेट है मेरे स्टॉक किट का और ट्रीटमेंट किट का कि मैं उसको जल्दी से लेके और कीमो वोमो से मैं फुर्सत पाना चाहती हूँ। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि मुझे प्लांट से बहुत बहुत, मेरे लिए गार्डनिंग मेरा पैशन है। तो जब भी किसी फ्लावर को मैं देखती हूँ, तो बहुत देर तक देखने की मेरी इच्छा होती है कि मैं इसको देखती रहूं। तो जब भी कोई फ्लावर जैसे ऊपर हुआ, पूजा वूजा करने के समय जब सुबह उठ के आते हैं, सुबह साधना करके, तो जब तोड़ने जाते हैं, तो लगता है कि क्या इससे भी मेडिसिन बन सकती है? पता नहीं, मुझे लगा जैसे एक ये फील्ड है जिसमें शायद थोड़ा सा हमें इंडियन क्लास है या जो भी है, तो उसमें कुछ रिसर्च करने की जरूरत है। और वो लग रहा है कि एक रास्ता मेरा खुल रहा है कि अब खाली बैठे हो तो चलो कुछ करो।
तो बस यही है कि अब इसको कुछ करना है। तो अभी तो मेरे पास पेशेंट तैयार हैं, पूरा बस स्टॉक कितना है, तो ना किट का वेट है आपको, बस किट का वेट है बस। वेरी नाइस, जल्दी। और गुरुदेव और एक बात भैया अगर पूछें तो क्या ये गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है, तो क्या वो भी इससे मतलब हो देखो, जाता है, गॉल रिलीफ ब्लैडर होगा? स्टोन के लिए यूजुअली ऑपरेशन कहा जाता है, बट आप ना आयुर्वेदा हॉस्पिटल में भी देखोगे ना, बिना ऑपरेशन के गॉल ब्लैडर स्टोन की एक पर्टिकुलर लेवल तक है तो निकालने में काफी हेल्प करने की एक ट्रीटमेंट है 5 डेज की। और डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। बैच फ्लावर रेमेडी का जो है वो भी उतना ही इम्पैक्टफुल है। आप लेके देखो गॉल ब्लैडर का, हमको भी पता चलेगा कितना इफेक्ट होता है आपके वजह से। बट हम सबकी प्रार्थना है, हम सारे जितने भी लोग हैं, हम सबसे सबके तरफ से प्रार्थना है गुरुदेव को, और उनके आशीर्वाद से हम बहुत श्योर है बिल्कुल जल्दी आप पूरी तरह से हेल्दी होके सबको हेल्प करने में। और आप तो ऑलरेडी हो, मैं इनको बोलता था एक तो कि आप रेस्ट करो, आराम करो, सो जाओ, कोई बात नहीं, सुबह इतने जल्दी उठते हो आप, वो पंकज जी आपको कर लेंगे। बोले नहीं, वो मुझे करना है, रात को 9:30 बजे तक 10 बज जाते सोने में। फिर भी बहुत कमिटेडली किया गुरुदेव की कृपा से और हम सब के प्रार्थना से आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाओ, और दूसरों को भी एकदम आप हेल्थ के लिए लग जाएंगे। तो हम भी बोलेंगे देखो, डॉक्टर बैच ही नहीं, अमिता जी भी ठीक हुए और कितने सारे लोग ठीक हो गए। ठीक है, फिर आप कहीं भी नाम से बुक लिखना आप भी एक अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ पंकज जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? मैंने कहा था कि हम लोगों ने बीच में एक महीने का 20-25 दिन का एक ट्रीटमेंट लिया था, वो आपके माध्यम से। तो उसमें ओलिव का असर बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा मीटिंग और सारा सब कुछ सुबह से शाम तक में, तो जो स्लीप की क्वालिटी थी वो मतलब संयम और सब एडवांस वगैरह सब इतना चलने के बावजूद भी एक थोड़ा सा और भी थोड़ा सा गहराई में जाने का मौका मिला, और रेस्ट सच में बहुत ही ज़बरदस्त मिला। वो ओलिव का ही असर था, और लगता है कि वो हम लोगों को और भी एडवांस कोर्स में जब कभी भी अब करूँगा तो एक जो मैं आपने बताई है उसको ज़रूर करूँगा। और 50 लोगों का हमारा पूरा अभी का रेडी है, वो बहुत जल्दी हम कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच। सुपर, हाँ बहुत अच्छा। एंड क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम। जय गुरुदेव। और कौन है? Who would like to go next? Yes, after this let's speak with Apurva. Yes, Apurva, कैसा रहा, क्या रहा? Yeah, I think level 1 के time पे we had already gotten a lot of information about remedies. The best thing about level 2 was that we got to know why that emotion is linked to that remedy. We had seen impatience as an example. तो वो question end तक था कि बाकी वीडियो हैंग हो गया ना? हाँ यार, मेरे लिए सबके लिए हैंग हो गया। सो अपूर्वा मिस ने भी थोड़ा सा इंटरनेट को ठीक करके देन शी कैन स्टार्ट। अभी तक तो ठीक था, अभी ब्लैंक हो गई। ओके, मे बी राजकुमार जी रेडी? ओहो, बताइए जी, कैसा रहा जी? बहुत पढ़ाई करने को बोला आपको। हाँ जी, बताइए। मैंने लेवल 1 किया। लेवल 1 में जो है जितना भी थेरेपीज बताया गया, जितना भी ये बताया गया, जस्ट उनका एक ओवरव्यू टाइप था। उसमें से हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये इमोशंस कैसे करके क्यों आ रहे हैं और किससे क्या डिसीज फॉर्म हो रही है। लेवल 2 में हमें जाने पे जो आपने पहले दिन और दूसरे दिन बताया कि बॉडी पार्ट्स से किस तरह से इमोशंस कनेक्टेड हैं और किस तरह से आपका डिसीजेज वगैरह जो है आपके इमोशन से कनेक्टेड है, वो पार्ट बहुत अच्छा है। मैं दूसरा मेरा अपना ये रहा कि कैसे हम दूसरे के इमोशंस को समझे, अपने इमोशंस को समझे। ये मैंने इस कोर्स में सीखा। आज तक मैंने अभी तक जितना भी कोर्सेज किया है, आर्ट ऑफ लिविंग का भी किया है, बाकी और कोर्सेज भी किया, कहीं पे मुझे ये नहीं मिला कि इमोशंस को मेडिसिन और किक से कैसे कनेक्ट किया जाता है। ये मैंने पहली बार इसमें सीखा। जैसे सब लोगों ने बोला है, सबको करना चाहिए, अनडाउटेबली सब।
बहुत अच्छा कोर्स रहा, वो बहुत अच्छी प्लान लर्निंग। जो आपके एकदम जान पे आ रहा था करने के लिए, अरे कर ही लिया आपने, फाइनली कर ही लिया। एक्चुअली मैं मेरा थोड़ा सा सबमिशन भी है कि एक्चुअली मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ, तो जो फेज मतलब लेवल 1 है एंड लेवल 2 जो है, इसमें थोड़ा सा अगर आप एक वीक का गैप करके रखें ना, तो जो लेवल 1 में चीजें सिखा रहे हैं वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, ये हो जाए। अभी मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ऑफिस वगैरह का बिजी है, मॉर्निंग में साधना का टाइम निकल जाता है, ऑफिस के 6-6:30 बजे ऑफिस आए तो मतलब सीधा कोर्स में बैठते हैं, फिर अगले दिन बट आपने बहुत अच्छे से किया राजकुमार जी, है ना? हाँ, बहुत अच्छे से किया। क्लैप फॉर राजकुमार जी। कुछ क्लाइंट्स वगैरह किए, किसी को ट्रीट किया आपने? ट्रीट अभी नहीं किया है, 2-3 लोगों से बात हो रखी है, तो जस्ट कल एक्चुअली टाइम ही नहीं, मैंने बताया ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सैटरडे संडे बस। मेक श्योर दैट यू डू इट। 15 अगस्त से पहले 50 लोग करने हैं। पक्का पक्का। ओके, और कौन है? रंजीत। ओ माय गॉड, बहुत सोच समझ के बोलना है रंजीत, और थोड़ा सा एकदम एनालिसिस के साथ प्रेजेंट करना है तो लास्ट में कर लेंगे। वैसे आई थिंक आज आपका इंटरनेट भी खराब है, आज आप अटक अटक के चल रहे हो, है ना? थोड़ा सा लग रहा है ना? बाकी लोग? आज मैं थोड़ा बाहर बैठ गया हूँ, कहे तो अंदर चला जाऊँ क्या रूम में? हाँ, अंदर चले जाइए, वो बेटर है। ओके, अपूर्वा, यू आर बैक? हाँ, बोलो। वापस बोलना पड़ेगा अपूर्वा, अपने बारे में बताओ। वापस एक्सपीरियंस शेयर करो। इंटरनेट वाज वेरी बैड। बोलो, वापस बोलो। अरे वापस हैंग हो गई ये तो, दोबारा से फ्रीज हो गई। चलो ठीक है, सुची जी, यू वुड लाइक टू गो नेक्स्ट? मेरा नाम शुचि है और मैं दिल्ली में रहती हूँ एंड प्रोफेशनली आई एम अ सॉफ्ट स्किल्स एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर एंड आई एम आल्सो एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर। मुझे बहुत अच्छा लगा ये कोर्स करके। आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड इट। इनिशियली मैं रिलक्टेंट थी, यू नो। आई लाइक टू थैंक माय हस्बैंड, वो यहीं खड़े हैं। He introduced, he actually forced me, you know, he keeps doing many things, Vastu and all, but I was a little reluctant. I thought नहीं, मैं अपने पाथ से drift नहीं होना चाहती, you know, my sadhana, you know, everything. But I'm so glad that I did, you know. I learned so much about emotions, especially in level 2. Level 1, like Dr. Anita had said, was just a trailer. Level 2 में हमने in depth study emotions की, you know, somewhere we know that everything, all diseases, everything is psychosomatic, but uska ek deeper understanding that how which emotion is connected to which disease, you know, we got to know. And how it's still intriguing, you know. Level 2 karne ke baad, the more I'm learning, the more this mystery is growing, you know, that how it's so mysterious, how there is so much of healing power in the flowers, in the nature, and practically everything, all possible emotions, you know, isme heal ho jate hain, everything, you know, physically, emotionally, and itni jaldi. So I'm so glad, you know, and this understanding of emotions and people has helped me, you know, like I shared in my level 1 experience also, has brought about a lot of forgiveness in me. Now I can see people beyond their this thing, you know. I see them as soul types. So अगर वो कुछ कर रहे हैं तो वो उनका soul type है, that's beyond them. Of course मेरी रेमेडी भी मुझे help कर रही है समझने में, and you know. और मुझे बहुत अच्छी चीज जो बैच फ्लावर में लगती है, that is, you know, that this is not just a scientific course, it's a very spiritual also. Like there are many remedies, you know, many numerology and color therapy and this and that, you know, they're very scientific. वो rational mind को तो convince करते हैं, but here, you know, like Dr. Batts talks about finding your soul's true purpose, जिसको हम मुमुक्षत्व भी बोलते हैं अध्यात्म में। तो वो इतना सुंदर एक कॉम्बिनेशन मुझे लगा, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। इट्स नॉट जस्ट कि भाई ऐसा जो भी है, जो भी चीजें हमें लाइक अनियन को पील करके लेट गो करनी, इट इज टू ब्लॉसम फ्रॉम इनसाइड, यू नो, एंड टू एक्चुअली फुलफिल आवर द पर्पस ऑफ आवर सोल। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड लेवल 2 तो स्पेशली टू गुड। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्रेटफुल to Digvijay ji for being a fantastic teacher, you know. He's just so good, he's so patient,
with us, and his style of teaching is so nice, and I had a very good time with everybody, and I really look forward to taking this knowledge. I feel, अभी मैं लोगों को भी देखती हूँ तो वो मेरा कैलकुलेशन चलता रहता है कौन सा सोल टाइप है उसका क्या चल रहा है so I really feel like I feel blessed that I've been given this opportunity, and like again and again Digvijay says love and care, उस भाव से I want to take this knowledge and help people, heal people. Clap for Suchi ji, बहुत अच्छे से किया उन्होंने, and I'm looking forward that she helps more and more people. But what she said, this love and care part is so important. Huh? See, Batch Flower, as a Batch Flower consultant, remedies are working. You are not working. You are just selecting the right remedy. The energy in that client is working to make that remedy work. But where your roles comes is definitely identifying the right remedy, but also to speak to the client in the right manner. With that love and care is very important. Even if you're giving remedy to somebody, even if you're not giving remedy to somebody, as she said, we are always calculating, ye soul type ka hai, ki ye soul type ka hai. When you're doing that, if you see some behavior which is not in your favor, or which is of a certain soul type, which is not good for him or her, your words should always be of encouragement. Yeah, we must remember that, because that love and care, that encouragement will only help the remedies to work. Even without remedies, it will only give that person that hope and optimism. Without hope and optimism, there is no scope of him. But if you keep giving that hope and optimism to people, which Gurudev always does, even to the dufferest of the person, what he says, you should, what बोलते ना कि तुमको दिमाग है पर तुम इस्तेमाल नहीं करते, या the way he says in a very funny manner. We have to understand this love, care, encouragement is what makes remedies more impactful. So with remedies, without remedies, this learning as a Batch Flower practitioner, as a consultant, the way you speak, also we all have to work on it. Yes? Very nicely shared. Clap for Suchi ji. This love and care point is very important. Don't forget about it. Who wants to go next now? Now, yes. अभी थोड़ा सा analytically, logically चीजों को समझते हैं. जी रंजीत जी. बोलिए. हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा लॉजिक में चला जाता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही है, बहुत इन डेप्थ है. I always value that about you. बोलिए. मैं आपके जो चैनल है गुरु ग्रेस स्टोरी, उससे जुड़ा हुआ था. तो ये बैच फ्लावर रेमेडी करके अक्सर मैं देखा करता था, तो कभी ध्यान नहीं दिया. हमने कहा ठीक है, कुछ होगा, एडवर्टाइज कर रहे हैं अपना. पर फिर सडनली मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स देखे और आपके कुछ वीडियोस देखे जिसमें आपने एक्सप्लेन किया है मीमलेस वगैरह के बारे में. और तो उसमें मैंने देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ. तो फिर और टेस्टिमोनियल्स मैंने जब देखे तो मुझे रियलाइज, मतलब एक सडन अट्रैक्शन हो गया मेरा. जैसे मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में भी जाने का कुछ ऐसा ही था कि एक पेपर के टुकड़े पे लिखा हुआ आर्ट ऑफ लिविंग देखा, सुदर्शन क्रिया, और कुछ ऐसा हिट किया कि मैं ढूंढते हुए सेंटर पे पहुंच गया. यहाँ पे लोगों को धक्का देके भेजना पड़ता, वैसे इसमें मैं आ गया, आपको मैंने कॉल किया था. तो और उसके बाद जब ये डिसाइड कर लिया कि करना है, तो फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, करना है. मैं आई रजिस्टर्ड फॉर बोथ लेवल्स एट वंस, कि जो करना है फिर अच्छे से करना है. मैंने वही हेलो, क्या लगा लेवल 2 में आके? लेवल 1 का तो आपका अनुभव है, हमने रिकॉर्ड किया है. लेवल 2 में आपके आके क्या डिफरेंस लगा, क्या लग रहा है, क्या सीखा, क्या डिफरेंस लगा? क्लाइंट्स जो आपने हैंडल लेवल 2 में आने के बाद ये लगता है कि नाउ आई एम प्रैक्टिशनर. लेवल 1 के बाद एक कर्सरी सरफेस नॉलेज तो हो जाता है ऑफ कोर्स, और अपने इमोशंस के बारे में हम बिल्कुल जान जाते हैं. बट यहाँ पे
आके जब ये देखा कि कैसे इमोशंस के साथ जो फ्लावर का ट्री का स्ट्रक्चर है वो कितना रिलेट करता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए और आई एंजॉयड दिस ट्रेनिंग थ्रू आउट। मतलब मुझे बहुत मजा आया, मुझे तो या बाकी बुक्स वगैरह भी वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आया इसका। और मैं सोच रहा हूँ नोरा विक्स का जो बायोग्राफी उन्होंने लिखा है, आप बता रहे थे, मैं किंडल पे परचेज करूंगा, वो पढ़ूंगा। वेरी नाइस। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और क्लाइंट किए कुछ? हाँ, क्लाइंट तो थोड़ा मैं बस किट मेरा आ गया है, मैं रेमेडी दे नहीं पाया। मेरे क्लाइंट काफी वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा किट आया सॉरी नहीं है फील अभी कर तक? रहा हूँ। हाँ जी, किट आया नहीं है? नहीं किट आ गया, वो बॉटल्स वगैरह थोड़ा प्रिपेयर करने पड़ेंगे बॉयल करके ना, तो वो अभी मैं कर नहीं पाया हूँ। बाकी फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड्स को मैंने ट्रीटमेंट बॉटल तो आपसे मंगा के ही दिए थे, तो या इट्स तो क्या गुड। क्लाइंट से जब आपने बात किया ये सब, क्या उनका क्या अनुभव रहा? एक्चुअली उनका अनुभव तो और लेवल अब 1 के बाद और 2 के बाद किया तो क्या डिफरेंस लगा? आपने लेवल 1 के बाद भी किया था? हाँ, लेवल 1 के बाद भी कुछ कंसल्टेशन, इवन मैं कहूँ तो लेवल 2 में भी सेकेंड लास्ट परसों तक मुझे ऐसा लगा कि हाँ, समथिंग वाज मिसिंग, कि ये क्लास कंप्लीट करने के बाद एक और एंगल निकल कर आया। जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझ लेते हो चीजों को, तो फिर आप रूट तक नहीं जा पाते हो उस चीज के। और मैं डिस्कवर कर रहा हूँ माय ओन वेज टू काउंसलिंग कि कैसे क्या करना है, उसमें चल रहा है मेरा तो वैसा। कैसे लगा लोगों को, कैसे लगा आपका कंसल्टेशन लेवल 2 के बाद? जी, मैंने जितने लोगों से बात करी, आई थिंक 99% पीपल अग्रीड टू टेक रेमेडी। वेरी नाइस। इवन मैं जहाँ पे बॉक्सेस बनवाने के लिए, डिलीवर करने के लिए मुझे बॉक्सेस बनवाने हैं, तो मैं वहाँ डब्बे वाले के पास गया, तो उससे भी मैंने बातों बातों में ये पूरा डिस्कस किया। सो ही टोल्ड हिज ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। वो आ गया, मैं फल वाले के पास गया, ऐसी बातों बातों में बोल दिया, वो बोला कि भैया मेरा कुछ ऐसा क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही मेरे क्लाइंट्स बनते जा रहे हैं। तो एफबी कितने पे आज क्लाइंट हुए अभी तक? कितने लोगों से बात किया आपने? मेरे ऑलमोस्ट 25 क्लाइंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली मिला के तो हो गए। वेरी नाइस। और या और आई होप कि थेरेपी लेने के बाद जब वो इफेक्ट देखेंगे, तो आफ्टर अ वीक, आई थिंक 1 वीक काफी होता है जनरली, लोगों को असर दिख जाना चाहिए। कुछ लोगों को मे भी ना दिखे, डोंट नो। मैंने तो डे फर्स्ट से फील किया था, मैंने पंकज भैया को बोला भी था कि भैया आई फील, और मैंने आपसे ही बोला कि आई फील द इफेक्ट, क्योंकि वी आर मेडिटेटर्स, तो मैंने जब ध्यान करना शुरू किया डे फर्स्ट से रेमेडी लेके, आई फील दैट डेप्थ। और इसमें मैंने एक मैं बोलूंगा कि मेरे मेडिटेशन में भी कुछ नए आयाम खुल गए इससे। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि जो संयम टाइम नहीं हुए, तो अब जाके हुए। तो मैं थोड़ा सा थोड़ा डाउट में भी आ गया, क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने काशी भैया से भी बात किया, उनसे ही हमने कोर्स करा था संयम का। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली कि देखो, ये घड़ा में पानी भरा हुआ है और एक गिलास डालने की जरूरत है। तो अगर तुम एक गिलास पानी डाला और पानी ऊपर से बाहर निकल आया, तो क्या बोलोगे कि ये पहले से जो पानी था उसकी वजह से हुआ, ये ऊपर से डाला गया उसकी वजह से हुआ? कि बिल्कुल दोनों का रोल है। तो बोला कि चेतना है, ये लर्निंग है, चाहे जहां से आए, है तो एक ही चीज ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी में भी एक नया आयाम खुल गया, और मैंने तो ये सोच के बड़ा मुझे सरप्राइजिंग फील होता है। और मैं मतलब एक क्लेमेटिस टाइप का पर्सन हूँ, तो मैं डॉक्टर बैच को महसूस करने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसे, मतलब उनका जर्नी क्या रहा होगा। और मेरा विजन है, मेरा कुछ मैंने कल ही यहाँ पे मुझे इलाहाबाद में स्टूडेंट्स की
कि को लेके कुछ करना है, उनके मेंटल हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस आगे बढ़ाना है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू सच सिचुएशंस। और यहाँ पे इंडिया में हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेके बात करना एक टैबू सा है। आइदर वी टॉक अबाउट सेक्सुअलिटी और मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इट्स बोथ इक्वल। सो मेरा एक है कि मैं सारे स्टूडेंट्स का एक ऐसा पोर्टल बनाऊं कि उनको जोड़कर इसके बारे में अवेयर करूं। व्हेनेवर दे नीडेड मैं थेरेपी भी उनको दूं, फ्री ऑफ कंसल्टेशन फ्री रहेगा, थेरेपी का मैं लूंगा उनसे, स्टूडेंट्स का। मेरा ये है, क्योंकि इस साल मैंने इतने स्टूडेंट्स को सुसाइड करते देखा कि मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के। मुझे अंदर से लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है। समवेयर आई फील कि मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे कि मे बी वो मेरे लाइफ के लेसन्स ही थे आगे बढ़ने के लिए, कि सो दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर देम, people who are suffering around the world. Today I met a lady on Facebook. She is living in Canada. और उसने इतना ज्यादा उसको प्रॉब्लम थी, वो बोल रही कि वो अकेले रहती है, घर से बाहर आ गई है, मॉम डैड को छोड़ दिया है, कोई मतलब नो रिलेटिव, नो फ्रेंड्स, शी इज इन डिप्रेशन, शी इज स्किज़ोफ्रेनिक, क्या बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया की भी उसको बहुत प्रॉब्लम है, बाइपोलर की प्रॉब्लम है, तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है उसको। Very nice, you did it very nicely, and I'm so happy that a person like you has taken it as a life mission. Let's clap for Anji. आप लोग मुझे तभी दिखोगे अगर आपका वीडियो ऑन है। हाँ, मेरे नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट दिखते नहीं है मुझे, मेक श्योर यू कीप योर वीडियो ऑन। हाँ अपूर्वा देख लेना, इफ somebody's video is off तो उठा के देखना। अरुण, you can go back to sleep if you want, you have taken the vaccine. Yeah, yes, Pushpanjali. हेलो एवरीवन। Hi. बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था ये। मतलब मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ एंड काफी लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है मेरा, तो मेरे लिए एक पॉइंट था लाइफ का जब मुझे लगा कि ये सफरिंग क्यों है लोगों में। लव एंड केयर हमेशा से था मेरे अंदर, तो आई समवेयर मतलब मुझे लगता था कि कैसे हेल्प करूं लोगों को, कैसे हेल्प करूं। तो इस जर्नी, इसके लिए मैंने मतलब आई वेंट ऑन टू द पाथ ऑफ योगा ऑल्सो, तो आई हैव डन योगा ट्रेनिंग, तो वो भी करा। उसमें भी फिर भी कुछ आंसर्स नहीं मिले थे, और फिर मैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स टीचर भी हूँ आर्ट ऑफ लिविंग में। दैट हैज ऑल्सो हेल्प्ड, लाइक आई वाज मोर थोड़ा और शस्त्र मिले कि किसी की हेल्प कर सकते हैं ना हेल्थ लाने के लिए, और अपनी भी हेल्थ काफी इम्प्रूव हुई मेरी उससे भी। फिर भी समथिंग वाज मिसिंग, लाइक लोग क्यों सफर करते हैं, इतना क्यों है सफरिंग। Then I went on the path of astrology also. I started learning, but along with my other responsibilities, it was too much of commitment from my side. Like बहुत ज्यादा था, और थोड़ा complicated भी रहता है. Like if you don't have background in astrology, तो बहुत ज्यादा time commitment requirement है. तो वो मैंने मतलब चल रहा है, बट नॉट दैट मच। तो अभी ये बैच फ्लावर इज द आंसर टू माय क्वेरी एक्चुअली, जो मैं ढूंढ रही थी ना, समथिंग आई नीड टू हैव जिससे मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। लाइक कोई भी मेरे आसपास से मैं देखती तो ऑलवेज अंदर से आता है कि इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो वो चीज मेरे को बैच फ्लावर से मिली है, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, तो कोई भी फॉलो कर सकता है, और इफेक्टिव भी है, और नेचुरल लिविंग में मैं बिलीव करती हूँ, तो नेचुरल भी है। तो उस हिसाब से इट इज द सॉल्यूशन आई वाज लुकिंग फॉर। तो मैंने बैच लेवल 1 तो मुझे शारदा दीदी ने भेजा था कि जाओ, क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू सम पर्सनल टर्बुलेंस, इमोशनल टर्बुलेंसेस चल रहे थे, तो उन्होंने मुझे भेजा कि चलो कर लो तुम ये लेवल 1। बट टिल देन आई वाज नॉट श्योर कि इतना ब्यूटीफुल होगा। फिर लेवल 2 के लिए मैं आई, और मतलब दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई हैव गॉट द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर।
and I'm definitely going to keep it as a part of my life. Or already मतलब I have started helping some people. और रेमेडी भी अभी मेरे पास नहीं है, बट अदर पार्ट्स ऑल्सो ना, नॉलेज इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल मेरे लिए, मतलब एक स्पिरिचुअल ओपनिंग हो गई है इससे और ज्यादा। बहुत सारे कोर्सेज अभी तक किए थे स्पिरिचुअल पाथ पे, बट इससे बहुत ओपनिंग हुई है। तो आई एम so much thankful that I have done this, and I hope I'll take it forward, and I'm sure I'll take it forward. और बहुत इसको मैं अच्छे से और डिटेल में जाना चाहती हूँ और सबका हेल्प करना चाहती हूँ। Thank you, Pushpanjali, for sharing. Let's clap for Pushpanjali. Thank you, Very everybody. nice. Very nice company we had here. Super. Thank you, everybody. Meena ji. Hi. It was indeed a beautiful journey. Level 1 was just knowing the names and emotions, and first time somebody can categorize emotions under the names. That was very good. But level 2 is really like understanding what you really need and why you need that. What is the reason behind it, and how you can relate it to your personality. And it is most you understand yourself better. Like I understand myself better with this, and as somebody was saying, like, it leaves a positive, whole house changes. Meena ji, your internet connection is very poor in this room. Meena ji, your internet connection is not very good. The whole house changed. Very impacted with this, and you won't believe. Meena ji, your internet connection is not very good. So you please. Is it better now? Is it better now? Okay. Yeah. Please introduce yourself and start sharing, because voice was not at all very clear. Okay. My name is Meena. I'm a housewife, and I did level 1 and level 2. Level 1 was just naming the remedies and what emotions can be categorized under that. But level 2 is why you name them and how it is related to the person or personality, and why it should be taken like that. Everybody are sensitive. Most of them know that plants are also living things and they have emotions too. But I feel most of the people in the world, the life is driven by emotions. You say yes or no, but I totally believe life is driven by emotions, because the decisions that are made are based on the emotions they are going through at that moment. You may have the best intention in your mind, but the anger or some jealousy that takes over you at that moment will decide what decision you're going to make and how you're going to react. And this is very important that we address the emotions. And as we know, we have a lot of knowledge from Gurudev and everybody, and how to keep them practically is not everybody's cup of tea, at least for people like me. So these remedies can act as a catalyst to clear off the dust or mirror, whatever dust on the mirror, and then it can help you go deeper in whatever you're trying to understand and whatever you're trying to know about yourself and others. So it has got a lot of impact on people. For definitely, it should be actually, as you're mentioning, teenagers course, it should be taken, before kids hit the teenage, they should be given this knowledge for sure. This is going to be a revolution. I mentioned this in the first level 1 too, that it has to be given. This knowledge is very important, that emotions are not us, we know that, but we are carried away by emotions. So we have to address this, and it's all responsibility that we have to take this knowledge to everybody, especially kids and teenagers, and because they are the youth, they are the next generation, they have to be taken care of right now. Very nice.
and it leaves a lot of positive energy. Like, you know, your thoughts are more refined or more clear. Your mind is more clear. And when you're perceiving a person in front of you, you're no more judging. You're laughing actually how they're reacting. Like, oh, okay, we know I what know you're your going type. through. I know So your type. they're compassionate. Yeah. Super. Yeah. Very nice, Meenaji. The way she participated, the way she's involved, she's so committed, and she was in India, then she's joining now all the way from US, and very nice, Meenaji. So nice to have you. Actually, you are very approachable. That made life easier. To tell you one more thing, after every course, I was never confident that I'm confident I can do this. But this course somehow I'm better. Yeah, good. We all Yeah. we all are confident you will do it very nicely. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Meenaji. Thank you, everybody. Yeah, check it there. Yes, who is left other than Nikunji? Nikunji. बोलिए. अनम्यूट कर लीजिए. जी. Jai Gurudev Bhaiya. Thank you very much. First of all, I'm Nikunj from Noida. I'm textile engineer doing my textile business and enjoying my happily life. I'm in alternate therapy already. I was or I am. So alternate therapy मैं पहले भी patients के लिए देख रहा था. And most of the time we were working on the chakras and meridian and try to treat them according to that therapy. So suddenly Sharda Didi ne call kiya and then I called Bhaiya. And I think that day I discussed with Digvijay Bhaiya almost 20-25 minutes. And जब इन्होंने मुझको बताया कि भैया फ्लावर थेरेपी से इमोशनल पे काम होता है तो immediately I connected with the Art of Living courses, Sudarshan Kriya and everything. Because Sudarshan Kriya को करते हुए बहुत साल हो गए तो we understand emotional balance कितनी जल्दी और कैसे होते हैं. जब सुदर्शन क्रिया मेडिकल साइंस में है ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो लेट्स सी कि अगर इमोशनल बॉडीज को हमको ट्रीट करना है और इमोशनल बॉडी से मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी को ट्रीट करना है तो कोई तो रास्ता इसमें होगा. बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रीटिंग माय पेशेंट थ्रू अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज उसमें टाइम बहुत लग रहा था. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी लेवल 1 इट वाज आई ओपनिंग. लेवल 1 में जब 38 रेमेडीज के अगेंस्ट हमने इमोशंस को पढ़ा और लेवल 2 में जब उन इमोशंस को संभालने का तरीका है. बिकॉज इमोशंस को समझना और रेमेडीज को समझना शायद लेवल 1 में बहुत इजी था, बट पेशेंट्स के अंदर जाके उस रेमेडी को एक्चुअली क्या देना है वो समझने के लिए लेवल 2 है. अगर हम लेवल 2 नहीं करते हैं तो शायद हम अपने पेशेंट्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मुझे ऐसा लगता है. तो इस एक्सपीरियंस को जब प्रैक्टिकली मैंने देखा तो भैया के साथ एक ऐसे पेशेंट को मैंने कंसल्टेशन की, भैया ने की और मैंने सुनी, जिसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने से डिफरेंट ऑल्टरनेटिव थेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा था और रिजल्ट वाज नॉट गुड. ऑल्दो आई कैन से 40-50% रिजल्ट वाज देयर बट नॉट गुड. बिकॉज एक इमोशन आ रहा है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं और वो इमोशन बार बार आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं कुछ कमी थी उसमें. तो इन 10-15 डेज आफ्टर रेमेडी जो उसको सेल्फ हार्मिंग सोसाइटल टेंडेंसीज थी वो बहुत शांत हो गई. एग्रेसिवनेस खत्म हो गई. जो वो सो नहीं रहा था, अपने घर वालों को मारता था, वो खत्म हो गया. सो इट वर्क्स एंड बहुत अच्छा लगा उसको समझ के. और वो पेशेंट कम से कम आने वाले टाइम आई एम श्योर इन अनदर व्हाटएवर द टाइम ही विल टेक अकॉर्डिंग टू हिज सोल जर्नी, वो शायद एक ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ जाएगा. देन वन ऑफ द पेशेंट हु केम टू मी with a lot of egos and pride, he said, I am happy, I am everything, this and that, but when I go home I sit alone and enjoy, and even my family member is enjoying, I am sitting alone. Oh my God. So when we get means जब उसकी पूरी डेप्थ में जाके उसको सारे इमोशंस बाहर निकले, then he was sitting like that. Oh my God, this is what the mistake I am doing.
Because sitting alone at home, it means कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर आपसे डरे हुए हैं, चाहे वो आपका ड्रिंक का गिलास है या आपके फेस एक्सप्रेशंस हैं. And he was the patient of higher migraine also. In 2 days or 3 days, he called me back. I'm okay. I do not have any pain in my head. My third patient, L3, L4, L5, we gave during the evening around 8 o'clock or 9 o'clock, I think after this class. And morning I asked, how is the pain? 50% relief. And evening again I asked, how is the pain? She said 100% relief. Last 3 days I am asking every day, no pain. Same patient, relative, migraine. 1 dose, migraine gone. I said, okay, stop, because I wanted to really see कि क्या एक dose से patient ठीक हो सकता है. She stopped. Now, what is this? These are the emotions. When you discuss with your patients and give them what we learn from Bhaiya, when you give them a energy, when you give them a motivation कि भाई तुम ठीक हो अंदर से, सिर्फ तुम्हारे emotions balance नहीं हो रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर लो, ये मेडिसिन ले लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अरे कुछ नहीं, घूमने चले जाओ, कोविड है अपनी छत पे घूम लो, कुछ तो करो. एंड इट वाज वर्किंग. बिकॉज लोगों को क्या हो रहा है पिछले 2 साल से, खास तौर से घर में बैठ के इमोशनल प्रॉब्लम्स तो आई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हैं या फाइनेंशियल हैं या एक कमरे में बंद होने की हैं, अंधेरे की हैं, ट्यूबलाइट के हैं, मोर ऑफ द टाइम दे आर ऑन कंप्यूटर, कुछ भी हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो हैं. जिन लोगों को शॉपिंग करने की आदत थी, उन्हें शॉपिंग करने से इमोशंस आते हैं. So this remedy is really working fast. I have already seen around 10-12 patients, and I earned also. सबसे ज़्यादा मैंने उस patient से लिया जो LUFO के दारू पीने में ज़्यादा enjoy कर रहा था. One shot money. मुझे पता था ये ठीक होने वाला है, ये दोबारा आएगा भी नहीं. So दे जा भैया. So I have a nature of donating from my income. So whatever I am earning from this therapy also, 10% should go in the donation. Donation, if you are not giving even in kind, see the patient, those who cannot pay you. So similarly, मेरे ऑफिस के पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो पे नहीं कर सकते हैं. जैसे स्वीपर का हस्बैंड है, वो आया, ओके, एंड सो ऑन. तो उनको देखो. So that is also donation. If you are giving a remedy where you have spent the money, so I am doing that. But thanks to you, जितना आपका धन्यवाद किया जा सके वो कम है. Thanks to Shada Didi, who pushed me to come here, because channel तो थे ना, and thanks to Gurudev, because एक channel तो है ही हमारा. So I have learned a lot. और सबसे important thing जो हमने इस पूरे 15 दिन या 20 दिन या whatever the number of hours you have spent with us, हम तो आपको सुन रहे हैं, आप कितना बोल के थक गए होंगे, I can well imagine. जो सबसे ज्यादा सीखने को मिला ना, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे सबके इमोशन हर आर में बदलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बदलते हैं, और अभी तक हम समझ नहीं रहे थे कि हमारे इस इमोशन पे सामने वाले पे क्या इफेक्ट आने वाला है. नाउ वंस यू अंडरस्टैंड, ओके, योर इमोशंस कैन डिस्टर्ब योर पर्सनल लाइफ. सो इमोशंस को समझने में बड़ा मजा आया, ट्री को समझने में और प्लांट्स के थ्रू. अब तो जब पत्ता भी हिलता है ना, तो मैं उसको देखता हूँ कि अच्छा ये इस वक्त इधर जा रहा है. Thanks to everyone, thanks to all my colleagues, and especially thank to Apurva Didi, who is really behind the screen, is helping Bhaiya to make a show for us. रात को 10-10 बजे तक उन्होंने काम किया और हम सबको किट बना के भेज रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. थैंक्स टू हर. मेरा उनको भी नमस्ते कहना भैया. थैंक यू. श्योर. बहुत अच्छे से किया निकुंज जी ने भी. क्लैप फॉर हिम. इतने लोग को इतना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं लेवल 2 का, और लेवल 2 का यही पर्पस है कि आप ऐसे रेडी हो जाओ कि लोगों तक इसका ज्ञान ये सब लेके जाओ. यही इसका पर्पस है, और इसी हिसाब से आप सब भी एकदम लग जाना काम पे अभी, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हेल्प करना. ये शुरुआत है. लेवल 2 तो ट्रेनिंग अपना अभी शुरू हुआ है. आई एम श्योर बहुत बार हम मिलते रहेंगे, फोरम में भी एक्टिव रहेंगे. तो दिस इज जस्ट स्टार्टिंग. Very important to practice love and care in our daily life when we are speaking to people.
always make sure that encouragement. One statement of discouragement, one statement of hurt can actually destroy the emotional state of a person. It's enough sometimes that last chain is broken, the last hit should not be from your side. Already इतना discouragement है, लोग already उनके problem में फंसे हैं. Why to make them realize about where they are wrong? We always remember जो हमने level 1 में देखा था, we don't fight negativity, we don't fight the black color, है ना? What we do, we add white color, we always add positivity, we always add virtue. So whenever we are talking to people, the way our nature overall as a practitioner should be to add virtue in other people's life, not pointing their negativity. Even if it is pointing the negativity, they already know about their negativity. Yeah, it should be in a way to add virtue, to give them confidence, to give them faith, to give them optimism, to give them hope, and to help them see way through the problem. Yes, most important वो सारे virtues हमने जो पहले दिन देखे थे अपने अंदर बढ़ाना, और सारे जो दुर्गुण है उनको हटाना. इसके लिए अभी अपने ऊपर काम करेंगे. थेरेपी, दूसरों को हेल्प करना, ये सब पैरेलली चलता रहेगा. But as practitioner, it is most important to work on our own self. You all are so senior in spirituality. Most of you are in Art of Living for maybe I'm in Art of Living from maybe 16 years. Most of you are even from 20 years, 22 years you are in Art of Living, and बहुत अच्छे से आप साधना में तो हो ही. ये साधना के साथ आप आशीर्वाद भी लोगों को देते जाना. Don't forget to surrender yourself to Gurudev, the whole case to Gurudev, so that you don't feel attached to the emotion, you don't get influenced by the emotion, you don't feel sad, you don't get involved in the case. Okay, so always do that. We'll keep meeting. There is so much more to share, and probably in the follow-ups in the level 3 we'll keep meeting, and we'll stay in touch. Okay, this is your forum. You guide how it should, how the thing should be taken forward. You take the forum forward. You create the portal and everything. Even if it is at slow pace, I really don't mind. But it is a movement which we have started together, and let's grow together. Okay. Okay. Thank you. Jai Gurudev. Thank you, Bhaiya. Thanks to all. Jai Gurudev. Thank you. Good night, everyone. Jai Good night, Gurudev. Arun. Good night, Apurva, Rajkumar ji. Thank you, Anita ji. Bye, Nikunj ji. Bye, Bhaiya. बहुत Bye, Sangamitra. Namaste, Meena ji. Thank you. Okay, Rajkumar ji. Jai Gurudev. Bye, Apurva. हाँ? भैया हमारा नेक्स्ट मीटिंग कब हो रहा है? सबके साथ में. हाँ? आपकी आवाज very fondly. Oh, thank you, Sangamitra. But I hope that we'll keep meeting and we will not get chance to miss us so much, each other. Yeah, you are so gentle, and your voice is so loving and filled with so much of care. Thank you, Marina ji. It's all Guru Kripa. आपकी Okay, आवाज Pushpanjali. मिलती है. Thank you. Bye. सलील भैया से मिलती है आपकी आवाज. Oh, अच्छा. सलील भैया वाज माय टीटीपी टीचर ना, तो मुझे हमेशा ही लगता है, मैं पूछने वाला था आप उनके भाई हो, फिर वो नहीं. You should give this feedback to him. I already. What did he say? Nothing. He said 4 कमरे छोड़ के मेरे साथ रहते हैं. पहले तो हम नेबर थे. When I was in college, मैं उनके घर में ही पढ़ा रहता था. तो घाट ऊपर में पास में रहते. So I have spent many years with